multi-sim platform in Grapher as well as in schematic. We also have a brief introduction to function generators and CROs and DSOs. And you were told to visit the course website and watch the videos of the hardware demonstration of this particular lab. Now, I hope you all of you have watched those videos and you may have learned few things, because when you during the evaluation you will be asked questions depending upon the type of experiments and the hardware as well as multi-sim. So today in this lab we will be doing the second experiment, which is study the VI characteristics of a PN junction diode and a Zener diode. So for that, this is the lab manual. When you will click on this lab manual, this type of file will be opened. Now here you can see the aim of the experiment, the apparatus required. So we have to analyze the VI characteristics of the PN junction diode. So we need one PN junction diode, one DC power supply, one multimeter, one breadboard, and then jumper wires. So these were the requirements for our hardware experiment. And for our software, you just need your multi-sim platform. So a brief theory about the experiment. All of you must have studied till now in your lectures that PN junction diode is a semiconductor device, and it has some characteristics depending upon the biasing circuit that we use. When we forward bias the PN junction diode, then it behaves differently. When we reverse bias the diode, it behaves differently. And in case of an ideal diode, we say that for reverse bias, there is no current which flows through the diode, whereas in forward bias, current starts flowing. The concept of knee voltage is there, and for silicon, the knee voltage is 0.7 volt, and for germanium it is 0.3 volt. So as soon as we have voltage range above the 0.7 volt, we see higher amount of current flowing through the diode, and below 0.7 volt, very less amount of current flows through the diode. And same is true for the germanium also. There is only one difference, that the knee voltage for germanium is 0.3 volt. And in reverse bias, the current flows, the amount of current flowing through the diode is very less. It is in the range of micro to nanoamperes. So for germanium, it is in the range of 20 microamperes. For silicon diode, it is in the range of 20 nanoamperes. Now, these are the two circuits that we will be designing today. So here we have one DC power supply, which is variable. That means we have to keep varying the input DC voltage. And then we have connected a resistor and a diode in series. Okay, just wait a minute. Okay, is now voice clear? Yes, sir. Okay. So one variable DC power supply, one diode, one resistor, and then we will, in hardware, we have two multimeters, one for measuring the current in the branch and one for measuring the voltage across the diode. So in multi-sim, we will use two probes,
one for measuring the voltage at this point, and one for measuring the current flowing through the diode. And after that, we will just reverse the direction of the diode. We will make it reverse bias, and then we will measure the values of the voltage VD and ID across the diode. And we will note down those values, and then we will plot those values, and we will see the forward and reverse bias characteristics of the diode. So this is the operation procedure for hardware. Now, for hardware, you can visit the website and see the video, which will be uploaded very soon. For software part, you go to the multisim.com, you go in your account, and you make your circuit. I hope all of you can make that this circuit. Keep changing the voltage. Keep noting down the voltage across the diode and the value of current. And in the end, we will plot a graph. Now, till now, if you have any doubt how to perform the experiment, you can ask. You have to design this circuit. You can take the value of resistance in the range of kilo ohm and just perform the experiment. Sir, should I make Yes. something? In the forward bias, you have to make a small gap of 0.1 volt till the point of 7 with a step of 0.1, and then reverse bias take a difference of 1 voltage and then measure the current accordingly, and then make a graph on your notebook and show us what you are getting the values. First you draw the circuit on the multisim, and then accordingly with the help of those values draw a graph on your notebook and show us with the help of screen sharing. We will see your graph, what are you obtaining. Also better draw voltage on the x-axis and current on the y-axis. You can see here also being shared on the screen. So accordingly draw it. Don't reverse the, suppose you are drawing the voltage on the y-axis, don't do that. Draw the voltage one on the x-axis and current one on the y-axis. Accordingly draw the graph. Or same thing what you are doing in the forward bias region, same apply for the Zener diode. In place of simple diode, you will use there as a Zener diode. And same thing you will obtain in Zener diode also. So you have to draw the graph for the simple diode as well as for the Zener diode. Okay, anyone, any doubt? Okay, if no doubt, then please design the circuit. सर एक बार मल्टीसिम वाली स्क्रीन दिखा दो. बताओ. In the multisim, you are doing the similar way, doing the resistance in series with the diode, and just in place of voltage you were measuring there with the help of voltage. Here you will put VI on the voltage side where it is a green sign. There will be one symbol for VI, V oblique I. You can see over here this third one. So if here you just have to put the value at the upper side of diode. When you will run the simulation, then the value you are giving for a voltage, then corresponding you will obtain the current value by just running the simulation. So you won't get any graph for it. Graph you will draw it yourself on your notebook. You just apply some voltage and you will get the current reading. In the forward bias you will get in terms of milliampere, and the reverse bias you will get in microampere. Microampere is a lower term than the milliampere. So in the reverse bias region you get the current just because of the leakage current, not because of majority carriers. So that's why the amount of current you are getting in the reverse bias is lesser as compared you will get in the forward bias. Getting my point? So in the similar way you can draw the graph on the forward bias region and the reverse bias region also. Okay, now try to design the circuit, and in case you have any problem, then you can discuss. Sir, I have joined late. I don't know what to do. Which circuit we have to draw? Okay, you have been study this lab manual where today we are doing experiment number 2.
we are studying the VI characteristics of a diode, and we have to design this circuit consisting of one resistor, one diode, and one power supply, DC power supply. Then we will measure the value of voltage and current across the diode, and we will keep on changing the input DC voltage, and then we will observe VD and ID, and we will plot a graph between VD and ID. We're taking VD on the x-axis and ID on the y-axis. And for forward bias, we will change the value of DC power supply from 0 to 1 volt with the step size of 0.1 volt. So first 0 volt, then 0.1, 0.2, 0.3 up to 1 volt. For reverse case, we will change the value in the range of in the step size of 1 volt, starting with 0 volt, then 1, 2, 3, 4 up to 10 volt. So this is the input supply. We have to draw the graph between VD and ID. VD and ID. In both the circuits are same, except for one thing, that here the diode is forward biased. Here we have reversed the direction of diode, making it reverse biased. Then we will note down the readings and we will draw a graph which should look like this. Okay. How many readings we have to take? 10 readings. 10 Yes, in for each. forward bias from 0 to 1 volt, 10 readings. Okay. If you can, you want to take more readings, you can also take more readings. पहले आप एक 10 readings लीजिए, उसके बाद in between अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं. And you have to show us your screen as well as your graph by sharing the screen. So all of you do it. We will see it. Yes. Someone asking? You can draw the graph on paper. You can also draw the graph on any. अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन जाके भी ड्रॉ करना चाहते हो किसी वेबसाइट पे जाके वैल्यूज डाल के, तो वो भी कर सकते हो जैसा आपको सुटेबल लगे. मैम जो आपने सर्किट में समझाया था मैम वो. हाँ बताइए. Yes, Manan, are you saying something? No, ma'am. Who was saying then? हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू को कैसे वेरी करनी है? बच्चे जो आप VI रखोगे ना वहां पर इंस्टेड हाँ, ऑफ, जब मैम, आप सर्किट वो- ड्रॉ करोगे तो वहां पर VI वाली वैल्यू रखोगे इंस्टेड ऑफ वोल्टेज एंड रेफरेंस वो ग्रीन वोल्टेज. वाला जो आप हाँ बोल रहे हो. हाँ, ग्रीन पे जो थर्ड वाला आ रहा था. आप हाँ. डायग्राम ड्रॉ करो, शेयर हाँ, करो कर स्क्रीन, दिया. देन वी विल टेल यू. अच्छा मैम, मैं कर दूं, मैंने बनाया तो है. हाँ दिखाओ दिखाओ. Okay, let me first stop sharing. Yes, sir. Now you can share. हाँ VI है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आप वोल्टेज की वैल्यू दो. मैम यहाँ पे ये ऊपर. यहाँ पर VI का ऊपर. हाँ. हाँ एंड देन यू विल गेट द करंट रीडिंग इटसेल्फ. हम कहाँ पे डालते हैं वैल्यू, अगर डालनी हो तो? पहले आप सिमुलेट करना इसको. रन करूँगा. Here. हाँ. Now you will get it. वहीं पर ही उसी पे क्लिक करोगे, इसी पे इसको स्टॉप करके. अच्छा. देन हियर ओनली इसी पे ही डबल क्लिक करो, ये अपने आप ही चेंज हो जाएगी वैल्यू. जहां पर VI लिखा है यहाँ पर. डबल क्लिक से मैम वो राइट में एक टेबल खुल रही है, उसमें करना है. हाँ तो वहां टेबल पे लिख दो. ठीक है मैम, मैं देखता हूँ एक बार.
एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम एक रीडिंग तो आ गई, उसके बाद वाली रीडिंग्स कैसे लेनी है? वोल्टेज की वैल्यू चेंज करते रहो, 0.1, 0.2, 0.3 इस रेंज में इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। कहाँ से चेंज करनी है? वहीं से चेंज होगी बच्चे। आ नहीं रही, चेंज नहीं हो रही क्या? मैम ये एग्जांपल दे दो कैसे होगा। मैम एक बार आप करके दिखा दो। अच्छा अच्छा, रुको सर, 1 मिनट शेयर करेंगे प्लीज। वेट, सर इज शेयरिंग। यहाँ पर 0.1, 0.2 in the range of 0.x by clicking the value. So ये आपकी वोल्टेज यहाँ पर आप वेरी कर रहे हो, 0.1 DC वोल्टेज सप्लाई, एंड यू आर गेटिंग करस्पॉन्डिंगली करंट वैल्यू एंड वोल्टेज वैल्यू इन द राइट हैंड साइड। VI कर्व देख रहे हो बच्चा? आप यहाँ पर वोल्टेज चेंज कर रहे हो, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो वोल्टेज की वैल्यू, जहाँ पर आप DC वोल्टेज सप्लाई दे रहे हो लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर आप सिमिलरली आप वोल्टेज एंड करंट यू आर गेटिंग ऑन द राइट हैंड साइड। गॉट द पॉइंट? मैम तो कहाँ तक लेनी है, 0.1 से स्टार्ट करके 0.1 से लेके 1 तक ले लो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, ठीक और है। रिवर्स बायस में विद द स्टेप ऑफ 1 वोल्ट 1 से लेके आप 10 तक ले लो। मिनिमम 10 रीडिंग ले लो, एक्स्ट्रा लेना है तो वो आपकी अकॉर्डिंग है, देख लो।
एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या लेना है? एक्स पे वोल्टेज, वाई पे करंट। ओके, थैंक यू। You can first make a table by changing the input voltage and noting down the voltage across the diode and current flowing through the diode. So you note down 10 readings in forward biasing starting from 0 to 1 volt, and 10 readings in reverse biasing starting from 0 volt to 10 volt. Note down these readings and then you can plot the graph. So you also have to make this table. And please remember that the graph is between voltage across the diode VD and current through the diode ID. Do not take this voltage along the x-axis. Take VD and ID.
हाँ भाई बताइए, किया किसी ने अभी तक? आदित्य, सर ये रिवर्स बाइस में 10 वोल्टेज पे भी 0 वोल्टेज ही आ रही है, मतलब उसकी ज्यादा होगी जनरल वोल्टेज। कोई बात नहीं, जीरो ही आएगी वो, ओके, नैनो एम्पियर में आ रही होगी या तो। 0 वोल्टेज ही दिखा रहे थे। ठीक है, जितनी आ रही है उतनी लिखिए आप। सर करंट मिली एम्पियर में लेना है। फॉरवर्ड बायस में तो मिली एम्पर में आएगा बच्चे, रिवर्स हाँ बायस में माइक्रो, हाँ हम फॉरवर्ड में वो पीको में भी जा रहा है। कोई बात नहीं, उसे मिली में कन्वर्ट कर लेना जब मिली मिली में की। कर देना, ठीक ठीक। मैम हाँ जी, वोल्टेज को 0.1 से लेके 1 वोल्ट तक वेरी करने के बजाय अगर 5-6 वोल्ट्स ले लें, क्योंकि ग्राफ बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है। मतलब 1 वोल्ट तक भी फॉरवर्ड बायस में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही आ रहा है। हाँ जी, तो थोड़ा अगर बढ़ा दे वोल्टेज ठीक है, को। थोड़ा बढ़ा के देखो कितना आता है, 2 तक लेके देखो, 0.22 के गैप से। बिकॉज क्या होता है ना, फॉरवर्ड बायस में हमारी जो वोल्टेज होती है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज सिलिकॉन की होती है 0.7 या 0.6, तो उसके बाद एक बिल्कुल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना चाहिए। मे बी हम मल्टी सिम में बना रहे हैं तो आई डोंट नो कोई दिक्कत है, थोड़ा हो सकता है इंक्रीज करके देखो आप, 2 तक लेके देखो क्या आता है।
Please, those who have drawn the circle, please show it. It has been already more than half an hour. You would have drawn it till now. Yes, Shahan, please share your screen and show us what you have drawn. Yes, ma'am. Mm. Just give me a second. This was my forward bias. And We can't see your screen. Where is okay? can you see it now? Yeah, yeah. So this is my forward bias, which I Hmm. created. And the graph for the same is 1 second. This was my graph for forward bias. Can't see. Wait. Okay. Nice. Means after approximately 0.55. Okay. Okay. Good. All of you can see the graph of Yash. In this way, you will get the graph. Ma'am, I've drawn the Zener as well. I was just in fact plotting in the values. Okay. Okay. These are the values. I was about to configure it. Okay. I've Okay. drawn Good. this. I've drawn the circuit as well. Okay. You Okay. could see. Yeah, Zener also you are getting good. This would Uh, directly state. In the reverse bias, you have drawn it, or the forward one? This is the forward one, and this is the Zener one. Zener, I cannot see it. Just 1 second. Is it visible now? No, we are seeing the same one. Now your circuit is being shown. Circuit, okay. This is actually, I don't know how to use Zoom so effectively. So. No problem. You can, if you are doing something else, you can share it again. Okay, double sharing. So I've drawn this circuit in Zener, and the values are there. I have to just draw the graph. The graph is left. Okay. So I'll finish that and then I'll show the whole thing. Okay. Is it okay? Okay, Yash. You can mute yourself now. Thank you. Thanks again. Saksham. Saksham, can you hear me? Yes, ma'am. Can't see Saksham. Is it being showing Saksham is sharing his screen? I think by mistake he has left the meeting. Rushil, you can show. Yes, please share your screen. मैं ग्राफ भी बना रहा हूँ मैं. बस डायरेक्टली आप मुझे अपने ग्राफ दिखा दो. No need to show the circuit which will be almost same for all of you. Just show me the हम graph. ग्राफ तो मैंने अभी
फॉरवर्ड का स्टार्ट करा था मैम, मेरे को 10 मिनट दो, दिखा दूंगा। ठीक है, करो। Saksham, you are back. Can you show me your graph? Just show me your graph. No need to show the circuit. I think he has some network issue. Mitali. Yes, ma'am. Show me your graph. Left. मैम ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं ना? हाँ, no problem. ग्राफ पेपर पे बनाओ, एक्सेल पे बनाओ, wherever you want to draw it. मैम तो रफ में तो मैंने भी बना लिया, तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे अब इस पे। उसको आगे स्क्रीन के आगे रख दो ना बच्चे। वेबकैम नहीं है इस पे, पीसी पे। फिर कैसे दिखाओ? तो आप फोटो लेके आप अपने उस पे व्हाट्सएप वगैरह पे डाल लीजिए, फिर उसको ओपन कर लीजिए। मैं या तो फोन से कर लेती हूँ एक बार, जूम मीटिंग। नहीं, आप फोन से फोटो खींच लीजिए और उस फोटो को कहीं मेल पे डाल दीजिए। देन यू कैन ओपन दैट मेल इन योर सिस्टम एंड यू कैन शेयर दैट। Ma'am, I'm done with the Zener one as well. Drawn it? Show me. Is it visible? Not now. Yeah, visible. This one is for reverse bias? Yes, ma'am. Good. Zener, it must not come like linear. These must be straight afterwards. Take some more readings, Yash. Take some more reading and observe, because it must be I was thinking the same, that I think I should take more readings to make it look take more more readings, because in the manual you can see now you will get direct straight line, because after the breakdown, if you will increase the voltage, you won't get any change in the current. So yes, ma'am, I understand that. I'll try taking more values. Take more values. Aditya is saying same with you, Aditya. Take more readings then. Manan. मैम रीडिंग्स ले रही है, ग्राफ बनाए नहीं है, बनाओ बच्चे फटाफट। Hina. Ma'am, I'm making the graph. Okay. Gautam. मैम अभी ग्राफ्स बना रहा हूँ, रीडिंग्स ले ली मैंने। Okay. आनंदी। मैम ग्राफ बन रहा है मैम, मैं अभी दिखा दूंगी थोड़ी देर में। Okay. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम रिवर्स बायस का तो बन गया, उसमें इतनी वेरिएशन नहीं थी वैल्यूज की, और फॉरवर्ड बायस में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो वो कैसे प्लॉट करें? कितनी वेरिएशन आ रही है? जैसे मैम फर्स्ट वैल्यू तो है फर्मीमीटर में, सेकंड आ जाती है फिर पिकोमीटर में, और उसके बाद तो डिक्रीज होती रहती है, फिर माइक्रो तक चली जाती है लास्ट तक। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस? यस मैम। तो बच्चे अगर आपकी जिसमें भी आ रही है, आप उसको मिली में चेंज कर लो ना, मिली एम्पेयर में। आप थोड़ी रीडिंग वेरिएशन थोड़ा ज्यादा रख लो इन केस ऑफ मिली एम्पेयर। मैम मेरे पे भी वही सेम प्रॉब्लम आ रही थी, सो आई स्टार्टेड आफ्टर 0.3 एंड नैनोमीटर्स को माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया था, एंड देन उसके बाद माइक्रोमीटर्स में मोस्टली सारी रीडिंग्स हैं। Okay, you can do one thing. You can reduce the value of the resistance that you have taken into the circuit. Yes, sir. Instead of kilo ohm, you can take into the range of 200 ohm or 500 ohm. Then the value of current will increase.
we can see that in few of the students, the graph, the abrupt change in the current we can see, but to take the value in the milliampere, you can change the value of resistance. Just lower the value of resistance and then you will get there. Ma'am, बच्चे wait, just wait a second. I'm just. हाँ जी बच्चे. ma'am, I'm done with the graph. Okay, show me then. Can you see my screen? Not yet बच्चे. Okay. Now. Okay, good. Take more readings so that you can see the more change in the graph. Yeah, all of you can see the Yash and Ananita both are sharing. In this way, you will get the graph for the forward bias reason. Okay. In the similar way, when anybody will draw for the reverse bias, then we will show you in the reverse bias also. Okay, Ananita, you can now stop sharing. तो मैम फॉरवर्ड बायसिंग में मैम फेरो एमीटर से माइक्रो एमीटर में आ रहा है, इतनी वेरिएशन है, तो फिर रेजिस्टेंस कम करके दोबारा रीडिंग लूं सारी, वैल्यू चेंज करके? जैसे सर ने कहा ना रेजिस्टेंस कम कर दो उसकी 1 किलो मैंने अभी तो। अच्छा, तो हाँ रेजिस्टेंस कम करके वैल्यू ले लो, कोई बात नहीं. जहां से स्टार्टिंग एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करके देन स्टार्ट टेकिंग द रीडिंग अगेन. टाइम लगेगा? ओके, कोई नहीं, बना लो, अभी टाइम है, अभी तो है हमारे पास, हाफ एन आवर है.
एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम रिवर्स बायस का ग्राफ एक बार देख लो। हाँ जी दिखाओ। आपने रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर में ली है रीडिंग कि मिली एम्पियर में ली है कि नैनो एम्पियर में ली है? हाँ जी। मिली एम्पियर में। नहीं बच्चे, माइक्रो एम्पियर में लेना है, गलत आ रहा है ग्राफ। थोड़ा स्टार्ट। अभी हाँ जी सर। हाँ, अच्छा आप लोग 1 मिनट और देखिए। जब हम यहाँ पर वैल्यू बढ़ा रहे हैं इनपुट वोल्टेज की, तो आपको ये वाली वोल्टेज जो है वो इस तरीके से बढ़ानी है कि आपकी ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाली वोल्टेज जो है वो 0.7 के आगे चली जाए। आप मुझे लगता है कि जो प्लॉट कर रहे हो तो इसमें इस वाली वोल्टेज में और इस करंट में कर रहे हो, आपको इसी वोल्टेज में और इसी करंट में करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 वोल्ट किया है, तब जाके यहाँ पे आपका 0.6 वोल्ट आया है। आप इसको चेंज कीजिए, इसको आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है 2.5 कर दीजिए, तो अब आपका यहाँ पे धीरे धीरे चेंज होगा। ये 0.67 वोल्ट हुआ है। फिर जब आप इसको 3 वोल्ट करेंगे तब वो यहाँ पे और चेंज हो रहा है। तो इसको आप बढ़ाते रहो, ठीक है। उसको यहाँ पे आपका बढ़ता रहेगा। ग्राफ आपको इस वाली वोल्टेज और इस वाली करंट के बीच में ड्रॉ करना है। जब आप इन दोनों के बीच में ड्रॉ करोगे तब आपका जो ग्राफ है वो ज्यादा सही आएगा। तो आप यहाँ पे जब स्टार्टिंग में वेरी कर रहे हो, तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे, तो हमारा पहले 0 आया है, उसके बाद हमने 0 की जगह कर दिया यहाँ पे 0.1, तो यहाँ पे भी आपका 0.1 और आपका जो है ये M2 एम्पियर में आया है। फिर इसको हमने 0.1 की जगह किया 0.2, तब यहाँ पे भी 0.2 है और यहाँ पर भी आपका 23 पिको एम्पियर है। फिर हमने किया यहाँ पे 0.3, तो आपका नैनो एम्पियर में आ गया है ये अभी भी 0.3 ही है। तो स्टार्टिंग की कुछ वैल्यूज के लिए क्या होगा, जो आपकी इनपुट वोल्टेज रहेगी वही हमारा VD भी दिखाई देता है। बट जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो वो आपका यहाँ पे भी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 0.4 किया, तो यहाँ पे जो है वो 0.4 से थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। तो फिर एक आप पॉइंट ऐसे करके आप पहले स्टार्टिंग की जो कुछ वैल्यूज हैं वो ऐसे लीजिए कि 0.11 के डिफरेंस पे ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 0.5 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे अभी 0.5 वोल्ट एग्जैक्ट नहीं है। फिर इसको आप एकदम से 7 वोल्ट 700 मिली वोल्ट कर सकते हो, 0.7 वोल्ट। तो यहाँ पे आप देखिए आपका वैल्यू जो है वो कितनी कम आ गई है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू थोड़ी सी आप ज्यादा बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको ग्राफ का जो प्लॉट करना है वो आपको इन दोनों वैल्यूज के बीच में करना है, ठीक है। तो इसको मैंने 8 की जगह में 1 वोल्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे फिर आपका थोड़ा चेंज ज्यादा आ गया है, अभी भी आपका माइक्रो एम्पियर में ही है, ठीक है। जब यहाँ पे आपका 0.7 के आसपास रेंज आएगी तब आपको यहाँ पे एकदम से मिली एम्पियर में करंट दिखाई देगा। तो आप इसको अब 1 की जगह 1.5 वोल्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप इसको 1.5 की जगह 2 वोल्ट कर सकते हो। तो अभी आपको 1.5 वोल्ट पे माइक्रो एम्पियर में यहाँ पे करंट है और ये मिली वोल्ट 0.65 वोल्ट है। जब 2 वोल्ट करते हैं तो आप देखिए आपका एकदम से करंट जो है वो मिली एम्पियर में चला गया है, तो यहाँ पे भी 0.66 मिली वोल्ट है। अब जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे इनपुट वोल्टेज को, आपका डायोड के अक्रॉस जो VD है वो सेचुरेट होने की कोशिश करेगा 0.7 के आसपास, और उसमें करंट जो है वो बढ़ता रहेगा। तो मैंने 2 की जगह अगर 4 किया, even then the voltage across the diode is 0.68 but current has been increased. Similarly मैंने उसके बाद 4 की जगह यहाँ पे 6 किया, तो आपका ये 0.7 के करीब जा रहा है, करंट आपका ऑलमोस्ट डबल हो गया है। फिर मैंने यहाँ पे 8 वोल्ट किया, तो आपको इन दोनों रीडिंग को अंदर ग्राफ प्लॉट कराना है। आपको ये ध्यान रखना है, इसको मत लीजिए, इनपुट वोल्टेज नहीं देखनी है आपने, VD और ID देखना है। फिर इसी तरह 8 की जगह मैंने फिर 10 किया, ठीक है। तो आपका ये 0.712 वोल्ट और 9 मिली एम्पियर। अब जैसे आप उसको और बढ़ाओगे
जहाँ जब आपका VD बढ़ेगा तो एकदम से आपका करंट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए 19 मिली एम्पियर हो गया, ठीक है, 69 मिली एम्पियर हो गया। तो इस टाइप जब इन वैल्यूज को आप प्लॉट कराओगे तो अब आपको जो ग्राफ दिखेगा वो 0.7 तक धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर एकदम से आपको ऐसे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। Did you guys get it? बताइए yes or no? You can Anita, listen from what sir is saying. Guys, you can see from this also what sir is saying कि आप जितनी वोल्टेज दे रहे हो, that is input voltage, जो भी आप वोल्टेज पावर सप्लाई अप्लाई कर रहे हो, आपको डायोड के अक्रॉस वोल्टेज और करंट मेजर करने। तो आप 0.6 या 0.7 जितनी भी आपकी वो नी वोल्टेज आ रही है, वॉट एवर वी कॉल्ड इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, 0.6 या 0.7 इन केस ऑफ सिलिकॉन, आप उसके बाद में कितना भी आप वोल्टेज अप्लाई कर लो, दैट means the voltage across the diode will always be remain the constant and the current will increase. You can see from the graph also, and the what sir is saying कि current increase करता जाएगा and the voltage will remain almost constant to the threshold voltage, which you have seen from the graph also what Yash and Anandita have shown us. All of you getting what sir has said? ठीक है, अगर आपको याद हो कि ऐसा क्यों हो रहा है तो आपने क्लास में पढ़ा होगा डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट। When diode is forward biased, then you can replace the diode with the help of a battery, ठीक है, और उस बैटरी की वैल्यू हमारी होती है नी वोल्टेज के बराबर। आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट, आफ्टर 0.7 वोल्ट अक्रॉस द डायोड, उस केस में हमारा फिर क्या होगा, आपका डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और फिर आपका सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा दैट विल लुक लाइक समथिंग दिस, ठीक है। तो अब ये और ये हमारा है 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड, ठीक है। एंड नाउ वी आर मेजरिंग द आउटपुट अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स। तो आपका वो अराउंड सेम रीजन के अंदर रहने की कोशिश करेगा 0.7 वोल्ट के आसपास, ठीक है, लेकिन करंट जो है वो आपका ज्यादा बढ़ता रहेगा एज वी अप्लाई द एज वी इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ ये वाली वोल्टेज और ये वाली करंट इन्हीं रीडिंग्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। So you have to take this value up to 0.7 वोल्ट और 0.9 वोल्ट कह लीजिए या 0.8 वोल्ट कह लीजिए, ये आपका वहां तक जाना चाहिए, ठीक है। आर यू गेटिंग इट सक्षम? यस सर। आदित्य, आदित्य, यश, यस सर। ओके, आनंदी, आनंदी बाली, यस सर, यस ओके। सर। तो आप ठीक है, तो आप जो है ना इनपुट वोल्टेज को इस तरीके से चेंज कीजिए कि आप यहाँ पे इन दो वैल्यूज का ग्राफ जो है वो ले पाए। अब आप इसको फटाफट परफॉर्म कीजिए। एक बार आप इसको पॉजिटिव कर सकते हो तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हो। फिर इफ यू कैन सिंपली चेंज इट टू नेगेटिव वैल्यू, ओके सर, ठीक है, तो ये -40 वोल्ट हो जाएगा। यस सर, वो जीनर के मैंने वो और लिए एंट्रीज, लेकिन अभी भी वो लीनियर ही है, मतलब आई मीन करंट का दिख रहा है कि एक्सपोनेंशियली कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ आप करो। हाँ जी, दिख रहा है सर? Okay, this is for reverse biased Zener diode. Yes sir. आप करंट माइक्रो एम्पेयर में ले लो यश। यस मैम।
ओके, आप एक चीज और चेक कीजिए कि आपने ये जो वैल्यू ली है ये इनपुट वैल्यू ली है या फिर वीडी लिया है। इनपुट कि इसके अक्रॉस कितना है, एक सेकंड से। यस, नहीं सर, आपको ये इसने वीडी लेना है। पोटेंशियल वो वाला लिया है, गलत लिया। ये हाँ, जब आप वीडी लोगे तो आपका ठीक आ जाएगा ये ग्राफ। बाकी रीडिंग्स आप आपकी बच्चे करंट गलत की ले रहे रीडिंग्स हो। तो सेम रहेंगी। यू जस्ट हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ इनपुट, इंस्टेड ऑफ इनपुट यू हैव टू चेंज द वैल्यू वीडी। आपको वोल्टेज और करंट डायोड के अक्रॉस लेने हैं, ये आप पावर सप्लाई इनपुट में अप्लाई कर रहे हो, उसके अक्रॉस नहीं लेनी। अच्छा, ठीक है सर, तो मैं अभी ठीक है सर। Okay. Okay, you just have to repeat the experiment, but then note down the pair of values given near the diode probe. The probe आपने Yes, Saksham, you are raising your hand. Yes, what? मैम फर्स्ट ग्राफ चेक कराना था। हाँ जी, हाँ जी, शेयर करो स्क्रीन। दिख रहा है? ठीक है। आपने ये VD लिया है ना एक्स एक्सिस पे? यस। हाँ जी सर, इसका तो वीडियो लग रहा है। Okay, that's why you can see that there is a abrupt change around 0.7 volt. In fact थोड़ा पहले ही हो जा रहा है। 0.5 के अप्रोक्स, 0.6 के अप्रोक्स आ रहा है, कोई नहीं, 0.6 0.7 उतना ही होता है। पहली वैल्यू तो फर्मी में आ रही थी सर। हाँ, वो बहुत ही कम आएगी ना। स्टार्टिंग में 0 आएगा। ठीक है, ठीक है सर। आदित्य का चैट बॉक्स में मैसेज आया कि इट्स माइक इज नॉट वर्किंग। हाँ, it's okay आदित्य, but you can share your screen if you have done. मैम। हाँ जी मैम, मेरा ये रन नहीं हो रहा। मैम, मैंने ये गूगल पे एक ग्राफ रखा था, उस पे ये रन नहीं हो रहा है। देखो, मैम दिखा? Where are you putting in demos that calculator? मैम, मैंने ग्राफ में टेबल में चूज किया था। आई थिंक आपके एक्सिस की जो सेटिंग है वो उस हिसाब से नहीं है कि वो प्लॉट दिखा पाए। ओके सर, मैं वाई एक्सिस पे आपकी 2.3 तक Gap- दिखा रहा है। आई थिंक गैप बहुत ज्यादा ले रहे हो आप। ओके मैम। अगर आपके पास एक्सेल है तो एक्सेल में आप सिंपली कॉपी कर लिख सकते हो, थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, ठीक है। एक्सेल में इजीली ड्रॉ भी हो जाता है। ओके। Sir, is there any lab technician with us in this group? पता नहीं, होना तो चाहिए था, बट अभी इसमें तो कोई आया नहीं, उसमें लिखा भी नहीं है टाइम टेबल में। क्योंकि एक ग्रुप में लैब टेक्नीशियन सर है ना, तो उन्होंने हार्डवेयर शो कर दिया था बच्चों को वहीं पर ही एक्स उसमें। मैंने विजय सर से बात तो की है, वो भी भेज रहे हैं, देखते हैं। ओके ओके ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैं रिवर्स बायस वाले में करंट कैसे एम्पियर 50 माइक्रो एम्पियर कैसे सेट करना है? सेट कैसे करना है मतलब? यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये जो फाइल है ड्राइव वाली। हाँ, इसमें लैब माइक्रो, मैनुअल में। हाँ, तो उसे माइक्रो एम्पियर की जो आपकी करंट की वैल्यू आएगी, उसको इंस्टेड ऑफ आप जैसे फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर में ले रहे थे, वो रिवर्स वायर में जो आप रीडिंग लोगे वो माइक्रो एम्पियर में लेके उसमें ही प्लॉट करो। ओके। समझ रहे हो आप? चेंज माइक्रो हमें एम्पियर सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू करनी है। हाँ, आपको वोल्टेज तो वोल्ट्स में ही रखना है, आपको करंट की वैल्यू चेंज करनी है। करंट या तो मिली एम्पियर में आएगा, करंट का क्या यूनिट होता है? एम्पियर, उसका Yes. वोल्ट या मिली वोल्ट। सो आपको करंट की वैल्यू चेंज करनी है। सी फ्रॉम हियर,
ऑन द वाई एक्सिस। फॉरवर्ड बायस में आप मिली एम्पेयर की रेंज में ले रहे हो, एंड फॉर रिवर्स बायस वो माइक्रो एम्पेयर की रेंज में आ रहा है। ठीक है सक्षम? यस। अगर आपकी कोई किसी और यूनिट में आ रही है, चेंज इट तो माइक्रो एम्पेयर। अगर आप मिली एम्पेयर में भी करोगे तो होगा कुछ नहीं, बस ये होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 6 माइक्रो एम्पेयर या 10 माइक्रो एम्पेयर है, तो मिली एम्पेयर में आपका ये जो कंप्लीट ग्राफ है वो इतनी सी रेंज में ही खत्म हो जाएगा। यू वोंट बी एबल टू विजुअलाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स मोर एक्यूरेटली, आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। सो दैट्स व्हाई सेम एक्सिस, for positive axis we are taking the readings in milliampere and for negative axis we are taking the readings in microampere. तो अगर आपको ये ग्राफ बिल्कुल बेसिक ऐसे दिख रहा है, बट दैट डजंट मीन कि ये वाली जो वैल्यू है वो दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, क्योंकि दिस इज इन मिलीएम्पियर एंड दिस इज इन माइक्रोएम्पियर। आप मिलीएम्पियर में भी रखोगे इसको, सेम एक्सिस रखोगे, तो ये वाला जो कर्व है वो आपको इस वाई एक्सिस के अलोंग ही दिखाई देगा, यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। रिवर्स so का एक बार सर, रिवर्स का एक बार स्कीमेटिक डायग्राम दिखा दो। जस्ट डायोड रिवर्स जस्ट हैव टू रिवर्स द डायोड। बस वैल्यू उसमें सारी पॉजिटिव में आ रही मेरी। फर्स्ट उसमें एनोड ऊपर आ जाएगा, कैथोड नीचे आ जाएगा, बस ये डिफरेंस है। नहीं मैम, वैल्यू सारी ये पॉजिटिव ना, में है। इसको जैसे आप इसको तो कर दिया सर, सर वो कह रहा है पॉजिटिव में आ रही है शायद। सर इसको एक बार रिवर्स करके इसको रन करना सर। सर इसमें वोल्टेज में जहाँ पर ये है ना ग्राउंड सर्किट है, वहां पर जाके वो भी होगा। एक क्या बता रहे थे सर? जस्ट मिनट, अभी बताती हूँ। यस सर, सेम वैल्यूज आ रही है। मैं सर ये कह रही थी कि वो हम जब जंक्शन क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें वोल्टेज के बराबर में ना एक जंक्शन का साइन होता है उधर, तो हम डायरेक्ट उससे भी कनेक्ट हो जाता है अगर इससे ना हो रहा। जब हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आपकी जो करंट की रीडिंग है वो तो अभी भी 0 के आसपास ही रह रही है। ठीक है, साइन इसलिए आ रहा है कि आप जो हमारी प्रोब कनेक्टेड है वो यहाँ इधर पॉजिटिव पार्ट से कनेक्टेड है। यस सर। ठीक है, मैं इसको चेक करके बताता हूँ आपको एक बार, तब तक आप एक बार मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इनकी वैल्यूज लिख लीजिए। ओके सर।
मैम मेरा एक बार जीरो वेरीफाई कर सकते हैं? हाँ जी दिखाओ। जस्ट a minute. ओके ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप साइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायोड की डायरेक्शन वही रखिए, यू जस्ट अप्लाई दी नेगेटिव वोल्टेज। हमने पहले प्लस .1 +0.2 +0.4 ऐसे करते गए थे। नाउ वी आर जस्ट चेंजिंग दी मैग्नीट्यूड ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द पावर सप्लाई। तो आप -1 लिख लीजिए, फिर आपका नेगेटिव में यहाँ पे वैल्यूज दिख जाएंगे। फिर एक बार आप ये -1 की जगह -2 रख दीजिए, ठीक है। फिर -3, हाँ सर, वो फिर ये ना कि अगर रिवर्स बायस में पॉजिटिव साइड इज कनेक्टेड विद अ नेगेटिव एंड, तो इसमें हाँ। यही हो गया ना, रिवर्स हो जाएगा, तो इस वजह से नेगेटिव में इसमें आ आपका जाएगा। नेगेटिव -5 वोल्ट है, दैट मींस यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ पे प्लस है। माइनस है कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो आपका रिवर्स बायस हो गया। फिर आप इस वैल्यूज को सबको नोट कर सकते हो। तो देख लीजिए -5 वोल्ट तक भी आपका -10 पिको एम्पियर तक गया हुआ है। तो इस केस में आपको क्या है, इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू दी वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। व्हाई? बिकॉज इन रिवर्स बायस इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द डायोड इज ओपन सर्किट। तो उसमें अगर आप डायोड को रिप्लेस करोगे तो उसको हम एक ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। और ओपन सर्किट में आप किसी भी टर्मिनल पे अगर आप वोल्टेज चेक करोगे, इस पॉइंट पर अगर आपको वोल्टेज चेक करनी है तो वो उतनी ही मिलेगी जितने पीछे से आपकी आ रही है। इसमें से करंट जो है वो आपका 0 रहेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये आपका आइडियल डायोड काम है। इक्विवेलेंट सर्किट देखते तो यहाँ पे जो भी आपके इनपुट में मिलेगा वही आपका मिलेगा, ठीक है। अब आप फटाफट रीडिंग लीजिए, इन केस आपको कोई डाउट है तो फिर पूछिए। एंड कीप शेयरिंग ऑन योर स्क्रीन सो दैट वी कैन नो वेयर यू आर डूइंग और नॉट। Yes, now you can share. मैम विजिबल है? नहीं अभी ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। हाँ ठीक है, बट मैम ये दरअसल 4.9999 है ना, तो थोड़ा हाँ ज्यादा प्रिसाइज है। फिर इसको -4 की जगह इग्नोर- सीधे फिर -5 पे जाओ ना, रीडिंग नेक्स्ट रीडिंग। आप एक काम करो, हाँ सर जो कह रहे हैं 0.4 के बाद 0.5, 0.6, 0.7 ऐसे आ जाए, ये बहुत जैसे ही ज्यादा precise है। -4 आपने यहाँ पे एक वैल्यू ली, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू -5 पे लो, फिर -6 पे लो, तो सेम प्लॉट जो है वो आपको एकदम से इस तरीके से दिखाई देगा। अभी आपको यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट नहीं किया आपने, 0 से यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर -1, -2, -3, फिर उसके बाद -4 पे ही रहेगी सारी वैल्यूज। रिवर्स में आपको स्टेप साइज लेना है 1 वोल्ट का, तो -0 से लेके -10 तक प्लॉट कीजिए। और ये भी आपकी जो है वो ध्यान रखना, ये जो आप वैल्यूज हैं ये भी VD की ही वैल्यूज हैं। ये रिवर्स बायस है तो इसमें आपका VD नियरली इक्वल टू Vin आ रहा है। डोंट ठीक है कंफ्यूज सर। दीस टू टर्म्स। ओके, तो अभी फिर वापस 0.6 तक की वैल्यूज लूं कि? ऐसा कर लो, ये वैल्यूज तो आपने चलो ले लिए, कोई बात नहीं। अब इसमें गलती तो कुछ नहीं है। आप जब नई रीडिंग लोगे तो उसमें -5 करोगे, फिर -6, -7, -8 वो वैल्यू इनपुट वोल्टेज लगा के इसमें बीच में आप वैल्यूज इंसर्ट कर दें, बाकी वैल्यूज को डिलीट कर दें, या तो फिर रख सर के फिर रखो, मैं वो भी कोई बात नहीं है। इसमें 2-3 वैल्यूज और ऐड कर दूं 0.5, 0.6 की, एंड 2-3 वैल्यूज बीच में से उड़ा दूं? हाँ, नॉट 0.5, -5, -6। हाँ वही, मतलब -5। हाँ ये चाहे रहने दो, -5, बाकी और ऐड कर दो इसमें। हाँ ठीक है। We have only 2 to 3 minutes left. If anybody else want to share anything or ask. हाँ जी मैम मेरा ग्राफ ही नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा बच्चे? एक्सेल में बनाया है?
मैंने उसको बनाया था गूगल पे ग्राफ बच्चे आप एक्सेल में बनाओ, बेटर है। इंस्टेड ऑफ गूगल एंड ऑल, ड्रॉ इट इन एक्सेल। वो वैल्यू सारी पुट करके एक्सेल में पुट करो एंड देन ड्रॉ इट। ऐसे क्या होगा बताओ नहीं। रिवर्स बायस का मैम मेरा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। हाँ दिखाओ जरा। नो बच्चे आप गलत ले रहे हो वैल्यू। सी आप वोल्टेज पे क्या वैल्यू ले रहे हो, -1 -2 ये वैल्यू तो आपकी क्या है, आप एज अ पावर सप्लाई इनपुट कर रहे हो, पावर सप्लाई दे रहे हो इतने की। बट आपको क्या करना है, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड एंड करंट अक्रॉस द डायोड मेजर करना है। तो जो आप इसके अक्रॉस की ये जो आपकी राइट हैंड साइड पे वैल्यूज है ना, ये V और I की जो आ रही है, ये वैल्यू लेनी है आपको, ना कि आप लेफ्ट हैंड साइड की जो वोल्टेज वैल्यू ले रहे हो। वो आपकी इनपुट वोल्टेज है जो पावर सप्लाई आप ऐड कर रहे हो, इसलिए आपकी गलत आ रही है। नहीं मैम, रिवर्स बायस में वो दोनों वैल्यू सेम आ रही है। आप वैल्यू अप्लाई तो करो, आप क्या कर रहे हो, सेम नहीं आएंगी, चेंज तो आएगा, वेरिएशन तो आएगा, ऐसे थोड़ा होता सेम आएंगी थोड़ी जो सेम आ रही है। आप कौन सी वैल्यूज कह रहे हो मैम? बच्चे जो डायग्राम है देखो, आप जो x ये 9 की वैल्यू ली ना, x9 जो आप लिख रहे हो -1 -2, ये हमने आपको बोला है पावर सप्लाई की वैल्यू चेंज करो इतनी। और जो आउटपुट पे लोगे VI की वैल्यू राइट हैंड साइड डायोड के ऊपर लगी हुई है वैल्यूज, प्रोब पे है। हाँ प्रोब पे जो है ये वैल्यूज, इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। जी मैम यही है वैल्यूज, उस पे भी सेम ही आ रही है। वोल्टेज की तुम जो उधर डाली है वो उधर आ रही है, सेम ही आ रही है। रिवर्स में सेम आएगी। हाँ जी बच्चे लेकिन ऐसे स्ट्रेट तो नहीं आएगा ग्राफ, थोड़ा वेरिएशन आएगा। आप उसमें देखो जो मैनुअल है, क्या क्या गड़बड़ी हो रही है आई डोंट नो, बट ऐसे स्ट्रेट नहीं आएगा, लीनियर कर्व तो आता नहीं है, एक्सपोनेंशियल कर्व है। एंड हियर यू आर शोइंग एज अ लीनियर वन। एक मिनट हमें सर्किट डायग्राम दिखाना। तो मम्मी तो पीको की वैल्यू है, इसको माइक्रो में कन्वर्ट करना होगा। शेयरिंग बंद कर। पीको की वैल्यू है, दिखाना। माइक्रो में कन्वर्ट करो। हाँ माइक्रो में कन्वर्ट करो। मैं यार इतनी देर से आपको अच्छा। बता रहा है कि माइक्रो एम्पेयर में लेना है आपको रिवर्स बायस पे। सारी पीको में ही है ना पर ये। हाँ तो इसमें से गड़बड़ी आ रही है, टेक इट इन अ माइक्रो एम्पेयर। ओके सर आई थिंक टाइम ओवर हो गया, बस 2 मिनट बचा है। हाँ बस 1 मिनट में भी करने हैं। आप लोगों को पता है हाउ विल यू सबमिट दिस लैब असाइनमेंट? नो सर। आप जो आपकी ये एनालॉग की मैनुअल बनी हुई है, इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं पहले आप थोड़ी सी वो भी लिख लेना। ठीक है, आपका एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, व्हाट आर जिसमें आपने क्या apparatus रिक्वायर किया, थोड़ा बहुत थ्योरी लिख देना। जो सर्किट आपने डिजाइन किए हैं उनकी फोटो लगा देना, दोनों की, फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए दिखाई देना, पता लगना चाहिए कि फॉरवर्ड का है या रिवर्स का है। फिर आपकी जो रीडिंग्स आपने ली हैं उसकी टेबल आ जाएगी और उन टेबल के हिसाब से आपका प्लॉट आ जाएगा। ठीक है सर मैनुअल में बनानी है। शॉर्ट्स अटैच कर सकते सर ये हैं। मैनुअली बनानी है हमने? नहीं, आप वर्ड फाइल में ही लिख देना, उसमें आपके एक्सेल में आपकी टेबल बनी हुई है उसको इंसर्ट कर देना एज इट इज। ऐसे आपके ग्राफ है उनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो मल्टीसिम के प्लेटफॉर्म से। ठीक है, आपको बस उसका एक्सपेरिमेंट का वर्ड फाइल में एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है और थोड़ी सी हल्की सी उसकी थ्योरी लिखनी है। ठीक है सर अगर ग्राफ कॉपी पेस्ट नहीं पेपर होना पे चाहिए। बनाया तो उसका फोटो लगा के करना है। हाँ वो भी कर सकते हो, ग्राफ पेपर पे बनाया तो आप फोटो भी लेके वो भी आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो अपनी फाइल में। ठीक है सर। सर ये पूरा मतलब टाइप करना है? सारा टाइप नहीं करना, टाइप करने के लिए तो थोड़ी सी चीज है, एक तो जो एक्सप्लेन करना है या जो एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है बस वही टाइप करना है, बाकी तो आपको अटैच करनी है फाइल। सिर्फ थ्योरी लिखनी है ना सर? नहीं है ना थ्योरी में आपको ज्यादा नहीं लिखना है, बस फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कैसे आपने क्या होते हैं वो लिखना है।
प्रोसीजर, सोर्सेज वगैरह वो चीज़ नहीं लिखनी। प्रोसीजर तो वो आपके हार्डवेयर के लिए है, इसमें आप अपनी तरफ से कुछ लिखना चाहते हो, आपने कैसे सर्किट बनाया मल्टीसिम पे, तो लिख दो, अदरवाइज नोट नेसेसरी। सर फॉर्मेट यही है सेम? हाँ, आपकी स्कीमेटिक डायग्राम दोनों होने चाहिए, आप फॉरवर्ड और रिवर्स के पता लगना चाहिए कि वो फॉरवर्ड है वो रिवर्स है, ठीक है, और आपके रीडिंग की टेबल होनी चाहिए और उसका प्लॉट होना चाहिए। सर ये वर्ड की फाइल अपलोड कहाँ करनी रहेगी? वर्ड में नहीं, वर्ड में बनाओ वर्ड में, लेकिन पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है, उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है सर। ओके।